नमस्ते। नमस्ते। मॉर्निंग सर। अरे अच्छा ठीक है, मदद चाहिए आप? चलिए आइए। तो हम लोग ये किससे कटा? नमस्ते। ये हम सोच रहे हैं सबसे हमारा उंगली छोड़ के नमस्ते। अरे वाह, ये नए वाले बच्चे हैं कि पुराने वाले हैं? पुराने भी नए भी। गुड मॉर्निंग। बैठो, प्रैक्टिस हो रही है, 2 बार कोशिश की गई। बैठे आप लोग। अच्छा या हम लोग First of all, I would like to request everyone to please stand up for the Rashtriya Gan. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We will proceed with the formal welcome of our chief guest and other dignitaries with the traditional khataks and bouquet. To welcome our chief guest, Professor Saket Khushwa, Honorable Vice Chancellor, extending the warm welcome. Extending the warm welcome to our other dignitaries by Mr. Navakundu, Minister of Ladakh. Dr. Mahdi, Principal Scientist, KVK Zanskar. Mr. Ali Raza, Chief Horticulture Officer, Kargil. Dr. Mahbub Ali, in charge administrator, University of Ladakh, Kargil campus. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. School of Agriculture, Science and Technology, University of Ladakh. Welcome to the inaugural event of first batch of BSc Honours Horticulture degree program. We are gathered here to celebrate a new beginning and mark a significant milestone. It's an honor to have you all join us. Welcome to our esteemed chief guest, Professor Saket Khushwa, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh. Mr. Nawang Tunduk, Registrar, University of Ladakh. Dr. Muhammad Mehdi Akhon, Principal Scientist and Head KVK Zanskar. Dr. Faizan Ahmad, Dean School of Agriculture, Science and Technology. Dr. Nasreen Fatima, Program Coordinator, Krishi Vigyan Kendra Kargil. Dr. Mahbub Ali, In charge Administrator, University of Ladakh, Kargil campus. All other dignitaries, faculty members, staff and dear students, thank you. Faizan Ahmed, Dean School of Agriculture, Science and Technology,
to present the welcome speech. Professor Dr. Saket Kushwaha, Chief Guest of today's function, Worthy Registrar Mr. Nawam Tunduk, Principal Scientist and Head KVK Zanskar Dr. Mohammad Mehdi, Chief Horticulture Officer Ali Raza Sahab, Senior Scientist Head and KVK Kargil Dr. Nasreen, In charge Administration Kargil Campus Dr. Mehboob Ali, my faculty members, BAT students, old students of BSc Agriculture and new students of BSc Horticulture and Agriculture, and my staff. A very good morning to all of you. जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है यूटी लद्दाख के कंटेक्स्ट में कि हम अपना एक न्यू प्रोग्राम बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर फर्स्ट टाइम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मौके पे मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है कि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जिन्होंने ये विजन बहुत ही रिसेंटली देखा और उसको दिखा भी दिया कि जिस तरह से जो हम सोचते हैं उसको हम विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करके भी दिखाते हैं। सबसे पहले मैं ये सिग्निफिकेंस इस प्रोग्राम की आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों हमने प्लान किस लिए किया गया कि बीएससी हॉर्टिकल्चर का जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो कारगिल में और लेह में दोनों जगह शुरू किया जाए। सबसे बड़ी बात कि हमारी कारगिल की जो इकोनॉमी है बेसिकली हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत ही स्मॉल है और बीसी रेशियो जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एग्रीकल्चर सीरियल क्रॉप्स से बेटर होने की वजह से फ्यूचर को देखते हुए ये प्रोग्राम बहुत ही कम टाइम में शुरुआत की गई है और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस चीज़ को साबित करके दिखा दिया। अब जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो इसके साथ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी इस चीज़ की हो जाती है कि हम एक बहुत ही रिमोट रीजन में रहते हैं और हमें आज की तारीख में जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा है तो हमें अपने बेस्ट ऑफ द कंट्रीज से किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना है। तो इसीलिए हमने जो ये कोर्स करिकुलम है इसको इस तरह से डिवाइस किया गया है। हमारे बहुत ही जो यंग प्रोफेशनल जो हमारी फैकल्टी है उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपका जो कोर्स करिकुलम तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 सालों में वो सब कुछ सीखेंगे जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट सीखेंगे। अब आजकल जो नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सब के कोर्सेज हमने इस तरह से डिवाइस किए हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रखने वाले हैं। इसके साथ साथ जो न्यू स्टूडेंट, मैं आपको इस फोरम से ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट बैच जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया था उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि एग्रीकल्चर में हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और हमने अपनी सीट से ज़्यादा जो हमारी सीट थी उनसे ज़्यादा हमने एडमिशन लिए हैं। तो इससे पता लगता है कि हमने पिछले 1 साल में इतना अच्छा किया है कि पब्लिक में ये मैसेज गया है कि ये इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का पार्ट है एजुकेशन के मामले में किसी से भी पीछे नहीं। आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट एंड हेड केवीके कारगिल वन प्रोफेसर मेहदी, चीफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रजा साहब, डीन साइंस, डीन एग्रीकल्चर साइंस सास्ट डॉक्टर फैजान साहब, इंचार्ज लद्दाख यूनिवर्सिटी कारगिल कैंपस महबूब साहब, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले फैजान सर से बोला कि पहले बोला होता तो शायद थोड़ा तैयारी करके आ जाती। तो आप लोगों को पता ही है हम फार्मर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होते तो इनफॉर्मली मैं बोलूँगी। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर कि आपने इतना एफर्ट्स लगाया कि विद इन नो टाइम्स, आपके अभी साल भी नहीं हो गया सर ये हॉर्टिकल्चर बेच यहाँ पे लॉन्च किया सर। फैजान सर का तो सर
बाकी फैकल्टी मेंबर्स का। तो ये एक ड्रीम था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोलना, एग्रीकल्चर की पढ़ाई यहाँ पे होना। हम उस जमाने में 2000 हमारा स्पेशल बैच था, जम्मू में हम पढ़े थे। जम्मू कितना मतलब अच्छा यूनिवर्सिटी है आज, तो उसमें हम पहला बैच था, हमें स्पेशल बैच, हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर स्पेशल बैच लिखा जाता था। जैसे कि सर ने बोला उस टाइम हम 19 बैच में हम 19 ही बच्चे थे। तो आज ये सर बोल रहे कि 30 बच्चों ने 30 बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो ये बहुत मुबारक की बात है, खुशी की बात है। तो उम्मीद करते हैं, सर ने जैसे बोला हमने जंगल काट के यूनिवर्सिटी बनाया है, वैसे हमारा भी बैच था, हम शर्ट में बैठते थे, लेकिन आप लोगों को शर्ट में बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छे खासे क्लासेस है, उसमें आप और आपको इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स है, उनसे आप नॉलेज लेने की कोशिश करो। आप लोग बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि हम चाहते थे जम्मू के एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट फ्रूट्स के हम पढ़ के आते थे और यहाँ पर कुछ फायदा नहीं होता था। जैसे कि लाइक मेरा स्केप पर पीजी पीएचडी दोनों मेरा स्केप पर था, अलमंड स्केप और एप्पल स्केप पर। तो यहाँ पर आकर मुझे कुछ काम नहीं पड़ते थे, कोई मुझे सजेशन देते थे कि तुम वहां से इनोकुलम लेके आ जाओ, यहाँ पर डिजीज स्प्रेड करो ताकि तुझे कुछ काम मिले। क्योंकि वहां से पढ़कर यहाँ का कुछ नहीं था, यहाँ की कोल्डिंग मर्क के बारे में हम नहीं जानते थे, यहाँ के अदर डिजीज के बारे में हमें नहीं पता था। जब वहां से पढ़ के आने का यही हमें नुकसान होते थे। लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से यहाँ के एग्रीकल्चर को, यहाँ के हॉर्टिकल्चर को, यहाँ के क्लाइमेट को समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। हम कहते हैं कि बच्चों को स्किल में जाना है, बीएससी एग्रीकल्चर करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, लेकिन जब हम वहाँ से स्किल होके आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब यही इसी जगह है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अब्बास साहब कितना अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाइए, इनको रोल मॉडल बन के जाना है कि इसमें दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमें जॉब के पीछे ही दौड़ना है। कि आप अपने ही स्टेट में, अपने ही यूटी में आप पढ़ रहे हो, तो आप सब कुछ आपको पता होगा कि किस चीज में हम आगे जा सकते हैं। तो आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी लद्दाख मोहतरम ऑनरेबल प्रोफेसर साकिब साहब, डॉक्टर फैजान साहब, डीन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, डॉक्टर मेहदी साहब, प्रिंसिपल साइंटिस्ट के ट्रांसफर, डॉक्टर नसीम फातिमा एंड अदर यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हमारे मोहतरम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, बाकी यहाँ पे तशरीफ रखे हमारे स्टूडेंट्स, आप सबकी खिदमत में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। चूँकि कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो मुख्तसरन और सेहत भी कुछ ये है नासाज है। तो सबसे पहले मैं खित्ते लद्दाख के लिए और यहाँ पे बसने वाले जो आवाम है और बिलखुसूस जो है स्टूडेंट्स है, जो मुख्तलिफ फील्ड में अपना प्रोग्राम, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और बिलखुसूस जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में, शोबे में अगर कोई जाना चाहते थे, ख्वाहिश रखते थे, तो उन सब के लिए, आप सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ऑनरेबल आज के चीफ गेस्ट मोहतरम वाइस चांसलर साहब का भी और डॉक्टर फैजान साहब का भी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का कोर्स जो है, डिग्री कोर्स जो है, आप यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। ये तभी मुमकिन हुआ जब आप लोगों की कोशिश के वजह से ये मुमकिन हुआ। तो हम सब के लिए, लद्दाख वासियों के लिए, खासकर करगिल और लेह दोनों में जो ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, खासकर बच्चों के लिए जो डिग्रियां हासिल करने चाहते थे डिफरेंट फील्ड में, तो आपके लिए आप ये मौका जो है आपके डोर स्टेप पर आप ये दस्तयाब हो गया है। तो इसलिए जो है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद ये करता हूँ कि
आप लोग जो है चूँकि नया अभी कोर्स है, नई इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई क्लासेस होंगे, सब कुछ अभी शुरुआत ही करना है। तो बेशक बहुत सारी चैलेंजेस जो हमें फेस करना पड़ेगा, इवन टीचिंग स्टाफ को भी एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी। तो इन सबको बर्दाश्त करके हमें जो है एक एज ए पॉइंटर स्टूडेंट, तो हम सबको ये सब चैलेंजेस जो है हमको फेस करके जो है हमें आगे बढ़ना है, ताकि आने वाले जो जनरेशन है, आने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अच्छा से रास्ता बना के जाए। तो जैसे कि ये कहा गया है कि जब कोई काम एकदम नया हो, शुरुआत करना हो, नई चीज हो, नई जगह हो, तो बेशक उसमें बहुत सारी मुश्किलात, दुश्वारियां होगी, उन सबको हमें फेस करके हमें आगे बढ़ना है। तभी तो शायद ने कहा कि तुम भी ये बात मुखालिफ से न घबराए होगा। बेशक आपको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, हमारे टीचिंग स्टाफ को होंगे, क्लासेस हमारे नई चलने हैं, नई लगनी है। तो तभी ये शायद ने क्या खूब कहा कि तुम भी ये बात मुखालिफ से न घबराए होगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो यकीनन आप लोग जो आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए एक नया रास्ता छाप छोड़ के जाएंगे। डीन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर कारगिल कैंपस डॉक्टर फैजल साहब, अली रजा साहब, डॉक्टर महबूब फैकल्टी ऑफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के फैकल्टी मेंबर्स, मीडिया पर्सन और प्यारे बच्चों, आज हमारे सब के लिए, पूरा गरीब आदमी के लिए एक इंतहाई खुशी का मौका है कि देश के बाकी जगहों की तरह यहाँ भी ताकि एक टाइम अगर देखा जाए दूसरा कम स्कूल है, यानी तो यह तकरीबन आपकी हम सब ये सोचते हैं तब उस ऊपर चला गया है। हालांकि इतने कम समय में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा स्टेप है कि चार कॉलेज एक स्टेट के अंदर खोलना, वो भी प्रोफेशनल कॉलेज, ये तो ऑलमोस्ट अगर सोचा जाए तो ये तो नामुमकिन बराबर था। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक लद्दाखियों के साथ एक अच्छी सिंपैथी होने की वजह से लद्दाखियों की इस एजुकेशन लेवल को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की स्किल को आगे बढ़ाने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान रहा है कि इतने कम समय में हमारे चार कॉलेज में देखने को मिल रहा है। और फॉर्चुनेटली आज हम किस्मती है कि ऐसे लेवल में हमारी इस यूनिवर्सिटी को आज लीड करने के लिए एक ऐसा हस्ती हमारे पास आज है जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, यानी खासकर वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे खुशकिस्मती है, डॉक्टर खुशकिस्मती से इंडिया में नहीं, बाकी देश से बाहर भी उनको काम करने का मौका मिला और हम सबको इसका पूरा फायदा एक साल के अंदर तो बहुत मिला। और हम तो अभी तो एक साल तो हुआ भी अभी 6 महीना हुआ और हमें उम्मीद है कि कमिंग आइंदा आने वाले टाइम में हमें इससे ज़्यादा कुछ देखने को मौका मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा ये वजाहत करना चाहता हूँ, खासकर यहाँ पर कॉलेज खोलना क्यों ज़रूरी था। हमने भी बीएससी एग्रीकल्चर किए, एमएससी के हॉर्टिकल्चर किए, लेकिन अलबत्ता जो जितना हमने अपने लाइफ में जो सीखा, इसके बाद मैं रिसर्च में 10 साल रहा और इसके बाद एक्सटेंशन के एमके सिस्टम में 14 साल 15 साल हो गए। लेकिन अलबत्ता मैं जितना सीखा एमके सिस्टम के अंदर, उतना मेरे ख्याल में ना मेरे रिसर्च में सीखा, ना पीएचडी में, ना इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या हुआ, मैं नीट बेस्ड तकरीबन थोड़ा बहुत, हालांकि केएमके में तो मैंडेट नहीं है 100% रिसर्च का, लेकिन मजबूरी यहाँ पर एक डेडिकेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड रिसर्च असिस्टेंट नहीं होने की वजह से हमें इस फील्ड में भी कूदना पड़ा और फॉर्चुनेटली हमें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर साइड में तो हमें इतना ज़्यादा काम रिसर्च ऑलमोस्ट न के बराबर, इतना अच्छा काम नहीं हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ जो हम चाहते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकें, लोगों की गरीबी को हटा सके या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, उस लेवल पे नहीं पहुंचे। और यही कॉलेज मैं सोचता हूँ एक बेहतरीन जरिया है। इस कॉलेज के जरिए हम अपने बच्चों का स्किल इम्प्रूव कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स हल कर सकता है, साथ ही फार्मर्स के इकोनॉमी को, फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी हमेशा यह नारा रहा है,
किसानों को दुगनी आमदनी को दुगनी करो। और यही आज की टाइम में हमें ज़रूरत है डोर टू डोर किसानों को समझाने की और साथ ही कहने की ज़रूरत है। क्योंकि सिस्टम में मैंने ये ऑब्जर्व किया भाई कि सिस्टम में एक तो प्रॉब्लम ये है कि खासकर वर्क कंडीशन में तो मैन पावर बहुत कम रहा। अब मान लीजिए हमें हर एक गाँव में साल में 1 या 2 दफ़ा हमें जाने को मौका मिलता है और हमने ये ऑब्जर्व किया कि उससे मतलब उनको इतना फ़ायदा नहीं मिला। साकेत कुशवाहा, डीन एग्रीकल्चर साइंसेस, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कारगिल, डॉक्टर फैजान, इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल डॉक्टर महबूब, हमारे साथ और हैं मेहदी साहब, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कारगिल, हमारे मैडम हैं KVK से, एंड ऑल्सो ऑल द लर्नेड जो यहाँ पे फैकल्टी है, एंड सबसे खास मेहमान जो आज हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स। I thank you all once again for inviting us here. We are very happy and delighted to be here, and I would like to congratulate first of all our Honorable Vice Chancellor and Dr. Faizan for introducing horticulture in कारगिल। और ये BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जो है सिर्फ कारगिल में ही नहीं है, ये ले में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। और हमारे VC साहब का शुरू से ही एक सपना था एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करना। एग्रीकल्चर तो हमने पिछले साल इंट्रोड्यूस किए थे। तो इमीडिएटली जब प्रोफेसर साकेत साहब जब यहाँ ज्वाइन किए थे, इन्होंने कहा था वाई ओनली एग्रीकल्चर, वी शुड ऑल्सो गो फॉर हॉर्टिकल्चर। तो उसी को कहते हुए इस साल 2025 के एकेडमिक सेशन में ये बिल्कुल ही मुमकिन कर दिया कि आज हमारे पास BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे बच्चे भी हैं, एडमिशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम और साथ में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपके जो यहाँ पे जो लीडर है, हम बॉस नहीं कहेंगे, हम लीडर कहेंगे। लीडर ही इज वन हु लीड्स, आपको अच्छी तरह राह में वो दिखा के लीड करता है। आपके डॉक्टर फैजान जो यहाँ पे हैं, ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर फैजान इज़ अ वेरी गुड, बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, और इनके लीडरशिप में हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हाइट्स और अचीवमेंट्स आएंगे आगे। तो ये बहुत अच्छी तरह आपको लीड करेंगे। इनकी कैपेबिलिटीज़ और बहुत डायनेमिक है। तो जो भी ये कहेंगे, आपके जो अभी आपको लग रहा होगा शुरू में, आई थिंक डॉक्टर फैजान कह रहे थे कि आज के डेट पे आपके पास कुछ नहीं है, हमारे पास यहाँ पे मतलब एक छोटा सा मकान है, ये है वो है। लेकिन जैसे इन्होंने वो जो पंत यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम्पल दिया था, उसी तरह कुछ ही सालों में आपको बढ़ते हुए दिखेगा ये यूनिवर्सिटी। इट विल राइज फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, ऐसा हो जाएगा। तो साथ ही मैं अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। सर, थैंक यू फॉर योर विजन। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी जाके एग्रीकल्चर साइंसेस में हम क्या और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। जितने भी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की तरफ से अब बच्चों को ज़रूर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और आपके जितने यहाँ पे टीचर्स हैं, उनका भी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ। जितने आपके फैकल्टीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, दे आर वेरी एक्सपर्टीज, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स हैं, PhD किए हुए हैं। तो आपके पास इतने टैलेंटेड और डायनेमिक्स आपके फैकल्टी हैं, तो इनसे भी आप बहुत ही फ़ायदा लीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए आप लोग सब। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, गर्मी भी है, तो आप सब लोगों को, बच्चों को ये इंकरेज करूँगा कि जब when you are starting something, there is a saying, start right, finish well। जब कुछ चीज़ स्टार्ट करना होता है उसका अच्छे से स्टार्ट करें, उसका फिनिशिंग जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। जब जैसे फॉर एग्जांपल हम घर बनाते हैं, जब उस पर फाउंडेशन डालते हैं, उस फाउंडेशन का सही तरीका होना चाहिए। तो उसके बाद जब आपका पूरा हो जाता है, फिनिशिंग जो होता है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। Exactly the same thing that replicates and implies in our life also, applies in our life also। कि जब हम कुछ चीज़ अच्छे से शुरुआत करते हैं और ऊपर वाले को याद करके मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क के लिए थॉमस एडिसन साहब कहते हैं हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको हार्ड वर्क करना है, साथ साथ में स्मार्ट रहना है, और जो भी चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं अच्छे से शुरुआत कीजिए और अच्छे से उसको ख़त्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच। And Nawam sir, Faizan sir and all the dignitaries, ma'am, मेरा प्लान नहीं था कि यहाँ पे बोले, but it is indeed a great moment for the university। Congratulations to Professor Saket Kushwaha, the Honorable Vice Chancellor of the university, who is leading from this time, and आपका बहुत शुक्रिया सर। Now we are seeing the university is taking shape from all forms। इस साल सर ने हमारे कैंपस में 24 कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं।
और ये 2 कोर्सेज से हमें लग रहा है सर कि कंप्लीट नाउ वी हैव ओनली 2 कोर्सेज लेफ्ट. वन इज़ मेडिकल साइंसेज MBBS वाला एंड इंजीनियरिंग. तो हमें पूरी उम्मीद है कि और फैज़ान सर को बहुत बहुत मुबारक ये कोर्स चलाने के लिए. और हमें उम्मीद है कि ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये होगा, साबित होगा. और जब हम एडमिशन कर रहे थे सर, तो हम रोज़ देखते थे कि कितने एडमिशन्स हुए हैं. तो among all the 4 campuses, this campus was leading from the planet. तो मुझे फिगर आ रही है कि for 30 seats of agriculture, 157 applicants आए थे. This shows the progress of this campus, and that is because कि एक dedicated faculty led by a very good leader is leading and making the show. So आप लोग फैज़ान साहब को बहुत बहुत मुबारक सर इस प्रोग्रेस के लिए. और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को आप लोगों ने चुना है अपने कोर्स के लिए. और 4 साल हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छा साल गुजरेगा. यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे. हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं सारे डॉक्टरेट्स हैं, लर्नड है, एक्सपीरियंसड है. सो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस कोर्स को. और फैज़ान सर यहाँ पे है तो मुझे लगता है कि आप बहुत एक बढ़िया कोर्स में आ गए हो. और यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा लोग आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि थिंक फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बिफोर गोइंग आउटसाइड. सो थैंक यू सर, थैंक यू. स्पीच में कहा था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा. ही इज द मैन. Now I would like to request our chief guest, Professor Saket Kushwaha, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, to enlighten us with your noble thoughts to commence this new degree program. And dear colleagues, I am Naseem Sahara, a newly admitted student from BSc Agriculture Department. It's my great honor and privilege to extend a warm welcome to all of you on this special occasion. We are truly grateful for the presence of our distinguished guests who have taken the time out of their busy schedules to be with us today. I would like to thank our eminent guests, Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Saket Kushwaha Sir, Registrar Shri Nawang Tundup Sir, Chief Agriculture Officer Ali Raza Sir, Senior Scientist and Head Dr. Kacho Nasreen Fatima Ma'am, Administrative In Charge UOL Kargil Campus Dr. Mehboob Sir, Dean SAST Kargil Dr. Faizan Sir. Your vicinity here means so much to us. Also the newly admitted students of agriculture and horticulture. Also the teaching and non-teaching faculty of SAS Kargil. Today I would like to talk about BSc Agriculture and Horticulture. BSc Agriculture is a 4-year undergraduate degree focused on the science and practice of farming and food production. The course covers subjects like agronomy, soil science, horticulture, plant breeding, animal husbandry, agricultural economics and pest management. Students learn modern techniques to improve crop yield, soil health and sustainable agricultural practices. This degree plays a vital role in strengthening and serenity our rural development. After BSc Agriculture, you can work in government departments like Agricultural Officer, join agri-based companies such as seeds, fertilizers, pesticides, pursue higher studies as in MSc Agriculture, MBA, AP Business and many other resources. Now talking about BSc Horticulture. It is also a 4-year undergraduate degree that focuses on the science and technology of growing fruits, vegetables, flowers, ornamental plants and medicinal crops. Career opportunities horticulture offers such as Horticulture Officer, Nursery Manager, Landscape Designer. Now, I would like to talk about why have I opted this stream BSc Agriculture. Because agriculture is the backbone of the economy, creating steady demand for skilled graduates in government and private sectors. I can also work as an agricultural officer, research scientist and start my own farm or agri-business. After BSc, you can pursue MSc Agriculture, MBA, Agri-Business too. Modern agriculture has biotechnology, drones and data science offering exposure to innovative tools and practices.
Lastly, I would like to share some key expectations from BSc Agriculture since I have opted that subject. You can expect hands-on training in farms, labs and research stations to learn real-world agricultural techniques. You will study subjects like agronomy, soil science, plant breeding, horticulture and agricultural economics. You will learn about innovations such as organic farming, precision agriculture, etc. The degree prepares you for government jobs like agriculture officer, private sector roles or entrepreneurship. Thank you and have a nice day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Julie. And once again, my sincere greetings to all of you. Thank you very much for organizing this program, Dr. Faizan. We are grateful to you. Why it is necessary, but let me first follow the protocol. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं नमस्कार करूंगा जो स्टेज पे लोग बैठे हैं. So my most sincere greetings to the London Registrar of our university, none other than Mr. Nawab Tundub Sahab. We have the in charge of this agriculture school, Dr. Faizan Ahmad Sahab. We have the administrative in charge of our Kargil campus, Dr. Mehboob, you have just heard him. We have the London horticulture officer, Raja Sahab. नाम तो गलत सही बोला ना, बहुत सही बोला. फिर झंस्कार के केवीके के साइंटिस्ट चीफ इंचार्ज हमारे मेहंदी साहब, डॉक्टर फातिमा who is in charge of KVK of this campus, KVK campus of Kargil. Ladies and gentlemen, we have students here, the newcomers and the old batch. We have people from London faculties, they are here, the technical people who are working in the lab, non-teaching fraternity, the media fellow, and then of course the entrepreneur here. उनका नाम मैं भूल गया हूँ, Dr. Abbas. Thank you very much for providing us such kind of beautiful flowers. ये आपके ही नर्सरी से आए तो थैंक यू बोलना चाहिए और ये हम सीखना भी चाहेंगे. So अब आते हैं हम अपनी बातों पे कि why we are here. First we welcome all of you and thank you for choosing this particular campus as your dream destination. Thank you very much. जाने को जगह दो, बैठते रहे. मास्टर ऑफ सेरेमनी यही है तो थोड़ा अब बात करते हैं कि दिस लेडी, बेटा आपका नाम क्या है? नसीम ज़हरा. नसीम बेगम, नसीम ज़हरा. नसीम ज़हरा. ये सब चीज मुझे अभी सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरे लिए नया प्लेस ऑफ वर्क है. ये मेरा 10वां साल है वाइस चांसलर का, तो इसलिए मैं ये सीखूंगा कि एड्रेस कैसे करते हैं. अब बात करते हैं कि ये व्हाई दिस डेस्टिनेशन, व्हाई वी शुड परस्यू स्टडी हियर. तो पहले तो एग्रीकल्चर इज रियली, मैं भी एग्रीकल्चर का ही ग्रेजुएट हूँ. इज नॉट दैट आई एम नॉट फ्रॉम द हाई रॉकेट साइंस. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ BSc एग्रीकल्चर. आई डिड MSc एग्रीकल्चर, देन आई डिड PhD in agriculture economics. My topic was sustainable development. Then I have worked for World Bank. Then I have worked for various state as well as central universities as a vice chancellor. But I am a senior professor in Banaras Hindu University. And this university is about age of the university is 100 years. That university was created in 1916 by the Parliament Act number, I think 236, but exactly I cannot recall, but something of that nature. The institute from where I came, from where I got my degrees, it was that institute was opened in 1936 before independence. So we have to understand the importance of agriculture in life. First of all, this is a business concerning 100% population on this earth. ये मकान, रोटी सबको चाहिए. So agriculture has a very immense contribution in the lifestyle. लेकिन इशू ये है कि हम जो डिग्री परस्यू कर रहे हैं इसके बाद हम क्या करेंगे. पहले तो वो बच्चे बताएं, कोई एक बच्चा ये बताएगा कि why you have chosen this particular campus. One reason.
तो कोई एक बोलेगा, आप विद्यार्थी हो, नया स्टूडेंट हो, आप खड़े हो जाओ। गुड, हम बोलना सीखेंगे ना। यहाँ खड़े हो जाओ। अब जोर से बताओ कि आपने इस कैंपस को क्यों चुना। यहाँ पे स्कोप अच्छा है, ये अपनी धरती है, अपनी धरती पे पौधे अच्छा जन्म लेते हैं ना, तो ये हमारी अपनी धरती है, हमारा अपना एनवायरमेंट है, अपने मम्मी पापा के पास रहेंगे और ज्यादा सीखेंगे, है ना, ये कॉन्फिडेंस है। तो पहला आपका जवाब होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप बाहर जाओगे, मान लो आप पड़ोसी राज्य में भी चले गए, जम्मू कश्मीर में, मैडम पढ़े हैं, आप सब लोग उपनगर से पढ़े होंगे, हम सब बाहर से पढ़े, जब अपॉर्चुनिटी कम थी, when things were not that much available here, तो हम बाहर जाके पढ़े। लेकिन बाहर पढ़ने में जो मुझे इश्यू लगता है कि हम पीछे रह जाते हैं कहीं कहीं। जो उस स्टेट के लोग होते हैं वो अपने आप को, चूंकि दे आर सन ऑफ द सॉइल, डॉटर्स ऑफ द सॉइल, तो वो होल्ड करते हैं पावर। तो वो मालूम चला कि आगे के सीट पे ही बैठेंगे। आप बाहर से आए हो तो थोड़ा शर्माओगे, सकुचाओगे, फिर आपको बजट की प्रॉब्लम होगी, वैसे पैसे नहीं खर्च कर पाओगे, तो आप पीछे रहोगे, है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको अपनी धरती पे रहना चाहिए, ये पहली बात है। ठीक है, बैठ जाइए। अब आप छोटी सी बिटिया है, खड़े जाओ। क्या नाम है? फातिमा मैडम। तो आप बताओ बेटा कि आपने ये हॉर्टिकल्चर चुना है, ओके, न्यू स्टूडेंट। तो आपने साइंस क्यों नहीं पढ़ना सोचा, या डॉक्टर बनने की क्यों नहीं सोची? मुझे लगा कि हम ये अच्छा कर सकते हैं, ऐसा लगा होगा। ये हमारे लायक कोर्स है, हम इस पे अच्छा करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू। आप इस बच्ची को दे दो। क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ। तनीस फातिमा। तनीस फातिमा मैडम, बताओ क्यों चुना ये सब्जेक्ट आपने? You chose this subject? इसमें मुझे इंटरेस्ट है। क्यों? मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलो, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते नए बच्चों से ना। गुड, ये दे दो। जानते हो, मैं एक बात बताऊं, आजकल एक फैशन है, एक ट्रेंड है, मम्मी पापा अपने बच्चों को अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर देखना चाहते हैं या अच्छा इंजीनियर देखना चाहते हैं, है ना। ये सब्जेक्ट बहुत चोजन सब्जेक्ट नहीं माना जाता है। बट यू विल बी वंडरिंग, माय फादर वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, सो टू से, बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन क्वाजी क्रिस्टल इन फिजिक्स। लेकिन जब सब्जेक्ट चुनने की बात आई तो उनके 5 बच्चे हैं, वी आर 5 सिबलिंग्स, ठीक है। 3 बहनें हैं मेरी और 2 भाई हैं हम लोग। हमने किसी ने उनका फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं लिया। क्यों? ये धारणा बनी है कि जो प्रोफेशन हमारे पापा मम्मी का है वहां लाइफ आसान होती है। नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो साइंस और इंजीनियरिंग इंटरेस्ट छोड़ के, मैं तो पीएमसी ग्रुप का विद्यार्थी हूँ, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, दैट वाज माय चोजन सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट। बट पहली फेल्योर मेरी क्या हुई? व्हाट इज माय फर्स्ट फेल्योर? एवरी फेल्योर ब्रिंग्स अ ग्लोरी टू यू। ये पहले बच्चों को ध्यान देना है कि आज का हमारा फेल्योर एक लेसन देके जाता है कि हमारे में क्या कमी थी जिसकी वजह से हम फेल हुए। उस कमी को इंप्रूव करने का एक तरीका मिलता है, ये हमें सोचना है। तो पहला फेल्योर मेरी जिंदगी का ये था कि जिस बच्चे को मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई, उस बच्चे के पहले अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट फेल्योर। आई वाज शाई फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक मैं बड़ा दुखी था, मम्मी पापा से नजरें चुरा रहा था, ठीक है, समाज से नजरें चुरा। पीपल कैसे आपको देखते हैं? आपका अंकल, आंटी, रिश्तेदार, पड़ोसी सब देखेंगे कि अच्छा, आधे पब्लिक तो आपको जेलस भाव से देखती है। One more. Thank you, sir. अब एक बात भी ले लें। ऑलराइट, एवरीवन मस्ट लुक एट द कैमरा। Thank you. मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मुझे यहीं पे एडमिशन मिला अपने ही होम टाउन में, क्योंकि मुझे कश्मीर नहीं जाना पड़ेगा, जम्मू नहीं जाना पड़ेगा इस फील्ड में परस्यू करने के लिए। मुझे यहीं पे सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे स्पेशली डीन हमारे डॉक्टर फैज़ान सर, जिनकी हेल्प से ये इतना वास्ट अभी ये जो कोर्स है इतना वास्ट हो चुका है कारगिल सेक्शन में, और ले में भी
हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की ये जो स्क्वास्ट है, ये इनके भी क्लासेस वहाँ पे भी प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं। यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश हुए 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था, अभी कुछ साल हुए हैं, और डॉक्टर फैज़ान सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और आई एम ऑल ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम कि उनकी ही मदद से, उनकी ही इंफॉर्मेशन की वजह से मुझे यहाँ पे एडमिशन मिला। सो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन हियर। मुझे यहाँ पे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, यहाँ के मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं। आज हमारा इनॉग्रल था यहाँ पे, हमारे बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट बैच हमारा इनॉग्रेशन था, और यहाँ पे कुछ हमारे गेस्ट्स आए थे, ऑनरेबल वीसी सर, वाइस चांसलर सर भी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने हमें कुछ बहुत सारी अच्छी टीचिंग्स सिखाएं यहाँ पे कि हमें कैसे फोकस रहना चाहिए अपने गोल के लिए, और गोल तक पहुँचने के लिए हमें क्रॉल करना पड़े या बैठ के चले या ऐसे पैदल चले या भागे, हमें गोल तक पहुँचने के लिए कुछ भी करना है, पर गोल पे पहुँचना ही पहुँचना है। तो इसके लिए हमें जी जान के हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे तो अच्छा लगा बीएससी एग्रीकल्चर, मेरा स्ट्रीम बीएससी एग्रीकल्चर है। मुझे अच्छा लगा सब्जेक्ट्स, मुझे कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे जगह भी बहुत अच्छा है, काफ़ी वास्ट एरिया है, तो एवरीथिंग इज़ गुड एंड पॉजिटिव है। थैंक यू। जुले अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो बता दूं कि ये जो आज पहला हमने ये कार्यक्रम किया है, ये नया बैच हमारा प्रोफेशनल कोर्स का बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का ये दूसरा साल है, हॉर्टिकल्चर का ये पहला साल है। तो मैं बच्चों को कैरियर के लिए मोटिवेट करने के लिए, उसमें कैरियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बताने के लिए, और बच्चों को स्टूडेंटशिप में क्या होना चाहिए इसके लिए मैं आया था। और ये पुराने बच्चे भी कुछ थे, आपने देखा होगा। और ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि इसमें यानी कि बीएससी करने के बाद आप हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, आप फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हो, आप फॉरेन ऑफिसर बन सकते हो। इसके बाद आप बैंक में नौकरी कर सकते हो, इसके बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे सकते हो, यानी कि लाखों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बच्चों को एग्रीकल्चर का नाम सुन के कभी कभी पेरेंट्स को भी लगता है कि काश हमारा बच्चा डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हूँ। आई डिड माई बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम BHU, देन MSc एग्रीकल्चर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें मालूम नहीं रहता है। दूसरा, ये कोर्स अब यहाँ खुल गया तो बच्चे अपने माहौल में रह के, देखिए कुछ लोगों के पास बहुत सारे अर्थव्यवस्था ठीक है, यानी धन होगा, वो बच्चे बाहर जाने में सक्षम हैं। लेकिन कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स बाहर नहीं भेज पाते हैं पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर हम शिक्षा आपके दरवाजे लेकर आते हैं, शिक्षा आपके द्वारे, ये मेरा सोचना है कि बच्चों को उनके माहौल में ही और उनकी भाषा में पढ़ाना। हालांकि भाषा भी हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, अभी तो इंग्लिश और हिंदी ही यूज़ करेंगे। और मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो करगिल की अपनी भाषा है वो भी इस्तेमाल करें। लेकिन एग्ज़ाम जो है वो आप जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं, तो हम एग्ज़ाम तो इंग्लिश में लेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए सारी भाषाओं का इस्तेमाल, जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो सीख सके। तो आज इस मकसद से हम लोगों ने यहाँ एक मीटिंग की। मैं फैजान साहब का धन्यवाद दूंगा, जो हमारे इंचार्ज हैं, इस डीन है हमारे एग्रीकल्चर के। उन्होंने बड़ी मेहनत करके, उनके पास अभी यहाँ 2 कैंपस है। आप ये जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये हमारा गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो गेस्ट हाउस जैसी चीज़ों का भी उपयोग हम बच्चों की शिक्षा में करेंगे, और सारी लैब्स को यहाँ लगा दे रहे हैं, तो बच्चे सीख पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये मेरा एक सोच है, इसी सोच के साथ मैं आया हूँ। सर, बहैसियत आप वाइस चांसलर जब से लद्दाख यूनिवर्सिटी में आप तैनात, हम नॉर्मल कोर्स चलाते हैं जिसके इंचार्ज महबूब साहब हैं, डॉक्टर महबूब। वहाँ तो हॉस्टल बना हुआ है, लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, ये सिर्फ रिसर्च स्टेशन था पहले। और आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर इतने आसानी से मिलते नहीं है, क्योंकि पहली बात तो मैं बता दूं कि हम सिर्फ प्रपोजल सबमिट करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर के लिए पैसा ग्रांट है वो यूटी गवर्नमेंट खुद ही करती है, चाहे वो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन करे या ले उधर करे, लेकिन वो खुद ही उसका ठेका देते हैं, उसका पैसे का सीधा वो आदान प्रदान। तो हम उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। हमने हॉस्टल का प्रपोजल दिया हुआ है, तो अभी तो फिलहाल हॉस्टल हमारे पास नहीं है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए यहाँ पे। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि ये जो बस सर्विस है वो चला दें, तो जिससे बच्चे यहाँ पहुँच सकें, सहूलियत हो जाए। और आगे
आने वाले हमारा प्रपोजल तो जमा ही है, अगर इस साल उन्होंने उसको अवार्ड कर दिया, पैसे दे दिए, तो काम स्टार्ट हो जाएगा। और जिस जगह हम खड़े हैं ये भी आपको मालूम होगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का किराया, मैं इसका बहुत किराया देता हूँ। मैंने उनसे ये भी बताया कि साहब हम शिक्षा के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उनको इसका किराया नहीं लेना चाहिए। लेकिन खैर वो अलग बात है कि वो हम उनसे बातचीत और भी करेंगे, लेकिन ये जगह भी किराए पे ही है। तो हमारे पास स्पेस की क्राइसिस है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, एक दिन में विकास नहीं होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है। और अभी तो यूटी बने, हमारा 2019 में हम यूटी बने हैं, तो इसमें प्रयास हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पॉजिटिव हो कि जब काम करेंगे तो हॉस्टल भी आएंगे, अच्छे हॉल भी आएंगे, बच्चों को वो सारी सुविधा जो दिल्ली में मिल सकती है या जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में मिलती है, वही सुविधा यहाँ भी मिलेगी। इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, जो मैं कर रहा हूँ। फेडरेशन इशूज़ को लेके चल रहे हैं, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। हम अपना काम अपने ये जो कंटेक्चुअल टीचर हैं उनके माध्यम से ही करेंगे, और वो भी 100% लद्दाख के ही लोग हैं, जितने भी हमारे टीचर हैं। तो हमारा प्रयास ये हो रहा है कि जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तुरंत कर लेंगे, जिस चीज़ के ऊपर हम इंतजार कर रहे हैं वो करके हम अपनी वैकेंसी फिर भरने का प्रयास करेंगे। सर, करगिल की एक बहुत बड़ी आबादी है, सांको वैली, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है जो करगिल कैंपस से चल रहा है, तो उसको बाज़ाब्ता डिग्री कॉलेज दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश होंगे? मेरी तरफ से जो प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्लाह की नेमत वो सब पे होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई खुशखबरी आएगी। इधर से जो हम लोगों की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे, वो सारे प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली तक पहुंच गए हैं। और वो सेंटर अपने आप में महत्वपूर्ण सेंटर है। मैंने देखा कि वहाँ बच्चों का एनरोलमेंट भी काफ़ी है, 137 बच्चे हैं, तो वहाँ पे कॉलेज का दर्जा मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत हिच होती है ना कि जब हम जैसे जब हम पार्ट थे जम्मू कश्मीर के, तो ये था कि साहब आप बहुत सारे कॉलेज नहीं खोल सकते थे, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ये एक नियम था। तो ये ऐसा नहीं है कि यूटी के लोगों ने ऐसा सोचा नहीं, उन्होंने सेंटर इसीलिए बनाया है कि वो कॉलेज बन सकता था, लेकिन नियम की वजह से नहीं बन पाया। तो अभी शायद उन्होंने वाया मीडिया या कोई जवाब ढूंढ लिया है और जल्दी ही वो डिक्लेयर होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जल्दी ही वो कॉलेज पूरा बन जाएगा।